Good morning, all of you. Today we start chapter number 7, Physiological and Injuries in Sport. We continue from page number 163. Today we start topic is physiological factor determining speeds. Speed is the next component of physical fitness which is determined by the following of physiological factors. Mobility of the nervous system. Mobility of the nervous system. Nervous system की mobility क्या है? और muscles contract and relax at the maximum possible speed as such in seen splitting event. आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड्स एज ए स्प्लिट. जो स्प्लिटिंग इवेंट होते हैं जैसे 100 मीटर हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगती हो, ऐसे इवेंट. द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स इज मेड पॉसिबल बाय रैपिड एक्सिटेशन एंड inhibitions of the concerned motor centers. This is called the mobility of the nervous system. The nervous system can maintain this rapid excitation and inhibition only a few seconds, after which the excitation spread to the neighboring centers, causing tension in the entire body. This result is decreases in speed. The mobility of the nervous system can be trained, but only to a limited extent. In fact, speed is determined to a greater extent by genetic factor. स्पीड कैसे होती है? स्पीड एक जेनेटिक फैक्टर. कभी अपन मानते हैं कि किसी का जेनेटिक फैक्टर अच्छा होगा तो वो स्पीड को प्रेफर करेगा, उसका नर्वस सिस्टम अच्छा होगा तो वो अपनी जो एंटायर बॉडी की जो टेंशन है वो कवर अप कर लेगा. मसल्स कंपोजिशन विद अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ फास्ट टिश्यू फाइबर. मसल्स कंपोजिशन क्या है? तो greater percentage of fast tissue fibers contract with more speed in comparison to muscles with the lower percentage of fast tissue fibers. In fact, the muscles composition is genetically determined, cannot be changed by training. ये चीज़ें भी चेंज नहीं हो सकती है muscle composition. Different muscles of the composition have different percentage of fast tissue fibers, so different part of body they have different speeds performance. उसके different parts of body के जो वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं अलग अलग स्पीड से. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बोलते हैं जो आपकी शरीर की पूरी ताकत लगाई जाती है. फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट, जैसे कि अपन बोलते हैं वेट लिफ्टिंग के बारे में, इसमें बहुत ताकत लगाई जाती है. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज indispensable. फॉर एग्जाम्पल, अ क्विक पंच इज बॉक्सिंग कैन नॉट बी डिलीवर्ड इफ द बॉक्सर लैक्स ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ फर्दर डिपेंड ऑन मसल कंपोजिशन, मसल साइज and muscles coordination. It's also depend on the metabolic processes. Except the muscles composition, the remaining factor can be improved through training, which in turn will improve the speed to a limited extent. The relative proportion of fast tissue fiber and slow tissue fiber determine a large extent the maximum possible speed with the muscles and contract. This proportion of fibers is genetically determined. That implies the top sprinter have more percentage of fast tissue fibers. एक्सप्लोजिव किस में होता है? जिसके जेनेटिक फैक्टर अच्छे होते हैं और जिसकी फास्ट टिश्यू फाइबर अच्छा होता है, जिसमें ये क्वालिटीज़ होती है, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. किस चीज़ में? जैसे बॉक्सर एक क्विक पंच मारता है तो जो बॉक्सिंग कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन द बॉक्सर लैक्स ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. Whereas Anderson athlete have more percentage slow tissue fiber, red fibers. Flexibility is also determined the speed to a certain extent. In fact, good flexibility allows maximum range. आपकी अगर आपकी अच्छी लचक होगी तो आप अच्छी रेंज तक उसको मोड़ सकते हो, अपनी बॉडी को, अपनी जो बॉडी के मूवमेंट है उसको अच्छे रेंज तक मूवमेंट कर सकते हो विदाउट मच इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके अंदर की ज़्यादा ताकत के बगैर. फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो enables complete utilization of explosive strength. किसका? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन भी कम करता है. बायोकेमिकल्स रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर. फॉर मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस द मसल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ कंजप्शन. अगर आपको अच्छी अपनी स्पीड परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो मसल्स को क्या चाहिए होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हाई रेट पे. कंजप्शन फॉर दिस पर्पज फोसागन एंड्रियोसाइन ट्रीफॉस्फेट एंड क्रिटीन फॉस्फेट. या तो क्रिटीन लेना पड़ता है, फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड स्टोर्स इन द मसल्स शुड बी इनफ ऑफ एटीपी एंड सीपी स्टोर इज लेस कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स द लेसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू. ये क्या होता है? आपको केमिकल बायोकेमिकल इसको बोलते हैं जिसमें मेटाबॉलिक पावर बढ़ती है. जैसे कि अपन कोई पाउडर लेते हैं, जैसे क्रिटीन हो गया, एटीपी हो गया, ये आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है, ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है. स्टोर इन द मसल्स शुड बी इनफ एटीपी एंड सीपी स्टोर इज लेस कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट
The metabolic power amount of ATP, CP and rate of energy supply can be enhanced by training. Therefore, it can be said the biomechanical reserve metabolic power determined in the speed. Next है the physiological factor determine. Physical factor determine आपका कैसे बढ़ता है ये एंडोरेंस पावर कैसे बढ़ती है, एरोबिक कैपेसिटी. अगर आप एरोबिक कैपेसिटी करते हैं आपकी अच्छी होगी तो आपका एंडोरेंस पावर ऑब्वियसली अच्छा होगा. किसकी चीज़ के लिए एरोबिक कैपेसिटी अच्छी होती है? टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कंटिन्यूसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल विच कैन बी सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप किसी भी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल्स कैन बी सप्लाइड. जो आपकी मसल्स होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन से सप्लाइड करती है by the presence of oxygen. Therefore, the ability of the organism is maintain adequate supply O2 to the working muscles. Aerobic capacity for energy liberation important for endurance performance. The aerobic capacity depend on the following factors. Oxygen intake, it is the amount of oxygen which can be taken by the lungs from atmosphere. जो ऑक्सीजन इंटेक होता है, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, ये किस पे डिपेंड करता है? lungs from the atmosphere. It was amount of this more better than achieving higher VO2 maximum. जिसकी VO2 जो होती है उसकी हायर मैक्सिमम अचीव कर सकता है. द ऑक्सीजन इनटेक डिपेंड ऑन द विट्रल कैपेसिटी विच फर्दर डिपेंड ऑन द लंग साइज. इसका जो लंग साइज है उसके हिसाब से वो कितना साइज में कितने कैपेसिटी में विट्रल एयर जो उसकी ऑक्सीजन होती है वो कितना अंदर ले सकता है. नंबर ऑफ एक्टिविटी अलोवी स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, उसकी क्या बढ़ती है, रेस्पिरेटरी मसल्स बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है. साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, साइज बढ़ता है चेस्ट का. ऑक्सीजन इंटेक इज इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंडोरेंस परफॉर्मेंस इन अ हेल्दी स्पोर्ट्स पर्सन. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल्स. ऑक्सीजन क्या करता है, जो आपका ब्लड होता है वो टेकन इनटू द ब्लड. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड, जो ऑक्सीजन जो होता है वो into the blood from lungs has to be transported to the working of muscles. क्या करता है वो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कहाँ ले जाता है, वो मसल्स के. उसके क्या होता है आपका जो वर्किंग मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है. द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच द ब्लड हैज ऑब्जर्व फ्रॉम द लंग्स एंड द एबिलिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी दिस क्विकली to the working muscles. The amount of oxygen absorbed into the blood depend on the speed flow through the lungs and the blood. Hemoglobin, the concentration of blood hemoglobin, which is about 14 to 15% in sports person, cannot be enhanced by training. The sports person oxygenated blood depend on the capacity of improved training, consequently increase in aerobic capacity. Oxygen uptake, the amount of oxygen can be absorbed and consumed by the working muscles from the blood is called oxygen uptake. एनर्जी रिजर्व रखना जिसकी जो एरोबेटिक कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी फ्यूल टू. जैसे कि हम कोई एनर्जी को रिकवर करने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए उस चीज़ को एंड्योरेंस पावर में बदलना. versus from the energy from the activities derived, there is the aerobic capacity depend upon the muscles glycogen and sugar level in the blood. In the muscles glycogen level of the fatigue, जो आपका फैटिक है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के लिए वो बेटर करता है और आपको थकावट महसूस नहीं करने देता है. जिसका ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन रिजर्व आर इम्पोर्टेंट. ये ज़रूरी है, आपका जो मसल ग्लाइकोजन है और लिवर ग्लाइकोजन है वो रिजर्व होना ज़रूरी है. इससे कि आपकी एंड्योरेंस पावर बढ़ती है. लैक्टिक एंड एसिड